Hello friends, I am Atul Nagarkar and here we are solving question of UGC NET November 2021. It was very informative video which will be very useful for the clearing NET or SET. Library and Information Science UGC NET November 2021 paper number 2. I am Atul Nagarkar welcoming all for this informative video. We are starting here and we are going to cover all the questions, 100 questions with explanation. I will try my level best, give the examples and explanation for various questions. Question number 1. The first US patent for an active RFID tag with rewritable memory was awarded to, and the options are David Brock, Kevin Ashton, Mario Cardulo, and Sanjay Sharma. And the correct answer is Mario Cardulo. In 1973, classical RFID technology was mainly invented for use in the military services. So, the answer, the first US patent for an active RFID tag with rewritable memory was awarded to Mario Cardulo. But David Brock, he is also related to he is an American liberal political consultant and he is only not related to RFID. But Kevin Ashton and Sanjay Sharma, they are related to RFID technology, but they are not having their name US patent for an active RFID tag with the rewritable memory was awarded to. So here हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो यूएस पेटेंट, फर्स्ट यूएस पेटेंट जो है एक्टिव आरएफआईडी टैग के लिए, रीराइटेबल मेमोरी के लिए जो दिया गया था वो मारियो कार्डुलो इनको दिया गया था। हाँ, हालांकि संजय शर्मा और केविन एस्टन ये दोनों आरएफआईडी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत सहायता देते हैं, लेकिन पेटेंट, फर्स्ट यूएस पेटेंट जो है वो मिला था मारियो कार्डुलो। लेकिन डेविड ब्रॉक जो है वो अमेरिकन लिबरल पॉलिटिकल कंसल्टेंट है जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ मारियो कार्डुलो। Question number 2. Who among the following were members of the Advisory Committee for Libraries 1957? नीचे कुछ मेंबर्स के नाम दिए हैं, उसमें से कुछ नाम जो है वह मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज़ के लिए जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी 1957 में, उसके 2 मेंबर हैं। एक तो BS केशवन और DR कालिया, ये 2 मेंबर उस एडवाइजरी कमेटी के हैं, लेकिन SR रंगनाथन, PN कौला और AP श्रीवास्तव ये नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज A and E, BS केशवन and DR कालिया were members of the Advisory Committee for Libraries in 1957. तो यहाँ तीसरा प्रश्न है, a type of attack in which person or program disguises itself as another person or program to gain access to some resource is called, और इसे क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। a type of attack, ऐसा अटैक है जो which person or program disguises itself as another person or program, जैसे ये ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जो दूसरे प्रोग्राम को खराब करता है, इसको क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज स्पूलिंग।
Next question, question number 4. Which of the following are true about the Special Libraries Association? तो नीचे कुछ 4 वाक्य दिए हैं. There are 4 sentences they have given following and 2 sentences are true, and these are: SLA was formed in the year 1909. 1909 में इसकी स्थापना हो गई थी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की. और जॉन कॉटन डाना वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट, और उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जॉन कॉटन डाना थे. इस वजह से ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन is a division of. रेफरेंस एंड यूज़र सर्विसेज एसोसिएशन किसका प्रभाग है? तो ये जो प्रभाग है रेफरेंस एंड यूज़र सर्विसेज एसोसिएशन इज़ अ डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. वी कैन से ALA, रेफरेंस एंड यूज़र्स सर्विसेज एसोसिएशन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रभाग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. LibQual Plus is a web-based survey offered by. LibQual Plus ये जो वेब बेस्ड सर्वे हुआ था किसने ऑफर किया था? तो उसका उत्तर है एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज. एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज. Question number 7. Which one of the following digital collections is not provided by the Library of Congress? तो नीचे कुछ डिजिटल कलेक्शंस दिए हुए हैं, उसमें से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 3 डिजिटल कलेक्शंस देता है लेकिन एक नहीं देता है. कौन सा नहीं देता है? ट्रेजर्स इन फुल. इट इज़ नॉट गिवन by the Library of Congress or not provided by the Library of Congress, but chronicling America, Civil War glass negatives and related prints, stereograph cards, ये तीनों जो है कलेक्शंस यह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रोवाइड करता है, लेकिन ट्रेजर्स इन फुल it is not provided by the Library of Congress. So we will see next question, question number 8, and this is match the following. Match list 1 with list 2. Match the digital library initiative with institution involved during their inception or creation. So Alexandria Digital Library, then ARXIV, then Universal Digital Library, then Project Gutenberg. इसकी जो जोड़ियाँ बनाई गई है वो है अलेक्जेंड्रिया डिजिटल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. ARXIV यह जो डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव है वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में. उसके बाद यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी US, यहाँ उसका इंसेप्शन या क्रिएशन हुआ था. प्रोजेक्ट गुटनबर्ग ये जो है यह यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, ये सारी जो है यूनिवर्सिटी ये अमेरिका स्थित है, लेकिन उसकी जोड़ियाँ जो इनिशिएटिव के अनुसार लगाई गई है. तो अलेक्जेंड्रिया डिजिटल लाइब्रेरी इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. ARXIV इज इक्वल टू कॉर्नेल यूनिवर्सिटी.
यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, it is very easy question. Who gave the concept of mental revolution? Who gave the concept of mental revolution? And F.W. Taylor given the concept of mental revolution. Please remember this. Next question, question number 10. Match list 1 with list 2. List 1 they have assigned author, and list 2 they have given the sources. And A.K. Dasgupta, an essay in personal bibliography. A.M. Levin Robinson, इनकी जोड़ी लगती है सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी, सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। C.T. बेस्टरमन, इनकी जोड़ी लगती है द बिगिनिंग्स ऑफ सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। और ली रॉय हैरोल्ड लिंडर, इनकी जोड़ी लगती है एक द राइज ऑफ करंट कॉम्पोजिट बिब्लियोग्राफी। तो ऐसी जोड़ियाँ लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11. Which one of the following acts as nodal agency for National Mission on Libraries, NML, National Mission on Libraries, for administrative, logistics, planning and budgeting purpose? RRRLF. It acts as a nodal agency for National Mission on Libraries. Question number 12. Match list 1 with list 2. They have assigned here list 1 metadata and list 2 examples. So first we will see administrative metadata, and it is for selection criteria digitization. Then second one, preservation metadata, documentation of the physical condition of responses. Then technical metadata, tracking system response time. Then user metadata, search log, ये search log है। तो इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा की जोड़ी सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिजिटाइजेशन के साथ लगती है। प्रिजर्वेशन मेटाडेटा की जोड़ी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिस्पॉन्सेस से लगती है। टेक्निकल मेटाडेटा उसकी जोड़ी ट्रैकिंग ऑफ सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम, और यूज़ मेटाडेटा सर्च लॉग के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13. दे हैव गिवन असर्शन ए एंड रीजन आर. असर्शन ए, अ वेब पोर्टल इज अ स्पेशली designed website that brings information from diverse sources. And reason is the majority of public libraries in India are using web portals. A is correct but R is not correct. A is correct but R is not correct. तो देखेंगे, a web portal is specially designed website that brings information from diverse source. जैसे वेब पोर्टल बनाए जाते हैं, इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जैसे डाइवर्स सोर्स, इंफॉर्मेशन का जो डाइवर्स सोर्स है उसमें से वेब पोर्टल पर आपको इकट्ठा जानकारी मिल जाए, इसलिए वेब पोर्टल का निर्माण होता है। और ये सही भी है।
दूसरा वाक्य क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, भारत के जो अधिकांश सार्वजनिक ग्रंथालय है, आर यूजिंग वेब पोर्टल्स। अधिकांश जैसे रूरल एरिया में जो भी लाइब्रेरीज है, पब्लिक लाइब्रेरीज, स्टिल दे आर नॉट यूजिंग वेब पोर्टल्स, सो आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Again I will say this is very simple question. Theodore Home Nelson founded Project Jhandu in the year. थियोडर होम नेल्सन इन्होंने जो झंडू प्रोजेक्ट का निर्माण या स्थापना की थी, कौन से साल में की थी? तो यहाँ इसका उत्तर है 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Which among the following is not, we should remember here they have put not. Which among the following is not a process theory of motivation? So equity theory, expectancy theory and goal setting theory, these are the process theory of motivation, but only content theory is not process theory of motivation. We'll see next question, and question number 16. Dash is a suite of protocol that were developed by the Department of Defense to provide highly reliable and fault tolerant network infrastructure. Dash is a suite of protocols that were developed by the Department of Defense. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो विकसित किया हुआ जो प्रोटोकॉल का सूट है वह कौन सा है? तो यह प्रोटोकॉल है TCP/IP। TCP/IP, लेकिन यह जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, यह आपको याद रखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, very good question. Which of the following are true about Z39.50? Z39.50 से संबंधित कौन सा वाक्य ट्रू है? और यहाँ वाक्य दिया गया है, आंसर है A एंड C, आंसर है A एंड C। तो यह दो वाक्य जो है वह करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन D जो है और B जो है यह करेक्ट नहीं है, ये दोनों करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, A, it is an international ISO 23950 standard. This is correct. It is related to Z39.50. And it was originally approved by the National Information Standards Organization, means NISO, in 1988. इसको अप्रूव्ड किया गया है था, निसो ने अप्रूवल दिया था 1988 में। तो ये दोनों वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन बी जो है वो सही क्यों नहीं है? द कॉन्टेक्चुअल क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट बेस्ड ऑन Z3950 सिमेंटिक्स, यहाँ नॉट दिया है, तो कॉन्टेक्चुअल क्वेरी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन Z39.50। अगर ऐसा वाक्य होता तो ये बराबर था, लेकिन यहाँ इन्होंने नॉट दिया है, तो इस वजह से ये गलत है। तो कॉन्टेक्चुअल क्वेरी लैंग्वेज प्रीवियसली नोन एज कॉमन क्वेरी लैंग्वेज, यह भी आपको पढ़ाई के लिए ध्यान में रखना है, जो कि आपको एग्जाम में उपयोग में आएगा। Common query language is a formal language for representing query information retrieval systems such as search engine, bibliographic catalog and museum collection information based on the
सिमेंटिक्स ऑफ Z3950। यहाँ आपका उत्तर मिल जाता है। इट्स डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव इज दैट क्वेरीज बी ह्यूमन रीडेबल एंड राइटेबल एंड दैट द लैंग्वेज बी इंट्यूटिव while maintaining the expressiveness of more complex query language। तो इस वजह से अगर यहाँ नॉट का उपयोग नहीं होता तो द कॉन्टेक्स्ट क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट बेस्ड ऑन Z39.50 सिमेंटिक्स ऐसा लिखा है, इस वजह से ये गलत है। अगर नॉट नहीं लिखा होता तो ये सही था। और डी जो है इट इज़ मेंटेन्ड बाय इफ्ला। Actually Z39.50 it is maintained by Library of Congress, so it is again D is wrong। क्वेश्चन नंबर 18। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वैसे भी मैं मोटा मोटा करके आपको बता रहा हूँ। माफ़ करना अगर लंबा हो जाता है तो भी ये पूरे 100 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और आपको एक साथ सारा नॉलेज इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अप टू डेट क्लूवेर इज। अप टू डेट क्लूवेर क्या है? अप टू डेट क्लूवेर इज अ रिसोर्स फॉर क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट फॉर हेल्थ साइंस प्रोफेशनल्स। Health science professionals। Next question, question number 19। The first version of Unicode was 16-bit encoding। 16-bit encoding। Question number 20, which among the following represent asynchronous reference transactions? इसमें ABC है, ईमेल है, वेब फॉर्म्स है और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है। ये सारे असिंक्रोनस रेफरेंस ट्रांजैक्शंस है। असिंक्रोनस मतलब जो आप बना के छोड़ देते हैं, उसके बाद यूज़र कभी भी उसको देख सकते हैं। लेकिन आस्क ए सर्विस और डिजिटल रेफरेंस रोबोट्स ये जो है ये रियल टाइम सर्विस है, असिंक्रोनस नहीं है, ये सिंक्रोनस है। इस वजह से उत्तर है ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एंड आंसर इज ACD, ओपल्स, कोहा, एवरग्रीन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ये जो तीन है ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन लाइब्रेरियन ये जो है वो ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इस वजह आंसर इज ACD, ओपल्स, कोहा और एवरग्रीन ILS, ये है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और ये बहुत ही आसान है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, दीज आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग, जब भी रैंडम ये जो शब्द आता है वहाँ आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कह सकते हैं। लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। हर सैंपल को चुनने का मौका यहाँ नहीं मिलता है, इस वजह से ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हर एक घटक को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। एवरी एंटिटी कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट, so this is random sampling and that is also called probability sampling. But convenience sampling and quota sampling are not or non-probability sampling. Question number 23. Question number 23. Lycos is a search engine which was originally started
as a research project at. Lycos is a search engine which was originally started as a research project. Lycos एक सर्च इंजन है जिसे मूलतः अनुसंधान परियोजना के रूप में शुरू किया गया, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। लाइकोस का यह जो इंजन लाइकोस एक सर्च इंजन जो है मूलतः ओरिजिनली स्टार्टेड एज रिसर्च प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में वो प्रोजेक्ट किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई या सॉफ्टवेयर आया वह है GSDL। उस 2 नंबर का जो सॉफ्टवेयर ई प्रिंट्स आया, ये 2 नंबर का है। सी जो है 1 नंबर का है। उसके बाद डी स्पेस आया और उसके बाद ओमे का सॉफ्टवेयर आ गया था। तो GSDL, ई प्रिंट्स, डी स्पेस और ओमे का सबसे लास्ट में आया था। तो आंसर है CBAD। क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग e-learning initiatives related to higher education in India in chronological order. Choose the correct answer from the option given below. B, D, C, A। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ वह ई ज्ञान कोश है। उसके बाद 2 नंबर NPTEL का लगता है। उसके बाद EPG पाठशाला और उसके बाद स्वयं के जो मुख्य कोर्सेज है सबसे लास्ट में, ये सबसे मॉडर्न है। तो ऐसी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देख सकते हैं। तो आंसर उसका हुआ 3 नंबर का BDCA। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द रिकमेंडेशंस मेड बाय नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 to ensure sustained attention to the development of libraries। तो यहाँ आइडेंटिफाई द रिकमेंडेशंस मेड बाय द NKC मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस बताई है वह कौन सी है? सस्टेनेबल अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज की जो शाश्वत डेवलपमेंट हमें करनी है, इसके लिए जो रिकमेंडेशन सिफारिश की गई थी उसमें से 2 सिफारिश है, स्टाफिंग ऑफ लाइब्रेरी, रीएसेस स्टाफिंग ऑफ लाइब्रेरीज, और दूसरा है सेट अप अ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड। B and C इज द आंसर। मतलब स्टाफिंग लाइब्रेरी का जो स्टाफिंग पैटर्न है उसको रीएसेस करना चाहिए, फिर से उसका मूल्यांकन होना ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने कहा था। और दूसरी सिफारिश उन्होंने ये की थी सेटअप ए सेंट्रल लाइब्रेरी फंड, और लाइब्रेरीज़ के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी फंड का सेटअप होना ज़रूरी है। ये 2 रिकमेंडेशन उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, एज पर APA रेफरेंस स्टाइल 6th एडिशन। APA का अर्थ है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इट इज़ ए रेफरेंस स्टाइल 6th एडिशन फॉर अ जर्नल आर्टिकल विच sequence of bibliographical elements is correct in the context of reference structure। यह जो है रिसर्च से संबंधित प्रश्न है और इसका अगर सीक्वेंस हम देखेंगे तो ये इस प्रकार है। सबसे पहले ऑथर ऑफ द आर्टिकल, ऑथर का नाम पहले आ जाता है। उसके बाद ईयर, कौन से ईयर में उस ऑथर ने आर्टिकल लिखा है उसका ईयर मेंशन किया जाता है। उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ आर्टिकल, उसके बाद टाइटल आता है। उसके बाद टाइटल ऑफ द जर्नल, उसके बाद टाइटल ऑफ जर्नल आता है और उसके बाद आता है पेजेस। ये जो पेजेस है ये सबसे लास्ट में आ जाते हैं। तो APA रेफरेंस स्टाइल के अनुसार पहले ऑथर, उसके बाद टाइटल, उसके बाद ईयर, उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल,
उसके बाद टाइटल ऑफ द जर्नल और उसके बाद पेजेस। ये क्रम प्रॉपर क्रम है एपीए रेफरेंस स्टाइल के अनुसार। तो आंसर है 4 नंबर का ADCBE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर? एंड आंसर्स आर ACD, वोस वीवर फर्स्ट, देन मिनीटैब ये भी है, और यन वीवो ये तीसरा है। तो ये तीनों डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। तो जोटेरो जो है वह रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वह डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इस वजह से उत्तर है तीसरा ACD ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। और मैच लिस्ट 1 में लिस्ट 1 में उन्होंने मार्क के टैग दिए हुए हैं और फील्ड भी दिए हुए हैं। तो जैसे मार्क टैग में 0 to 0 टैग होता है, वह किस लिए होता है? वह होता है मार्क्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN का जो टैग है वह है 0 to 0 टैग। उसके बाद 100 टैग है, वह किस लिए है? मार्क्स ए पर्सनल नेम मेन एंट्री ऑथर, ऑथर की एंट्री यहाँ करनी पड़ती है। 300 टैग जो है वह है मार्क्स द फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में जैसे पेजेस ये जो आता है वह साइज रहता है बुक का, वो सारा इसमें लिखा जाता है। 700 टैग में मार्क्स अ पर्सनल एडेड एंट्री, मतलब जो दूसरा ऑथर होता है उसकी एंट्री 700 टैग में आ जाती है। तो उत्तर है A को 4, B को 1, C को 2 और D को 3। इस प्रकार से उत्तर मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following are not posturizing common isolates according to colon classification 6th revised edition? And the options are institution, learned society, bibliography and table. And answer is C and D only, bibliography and table. तो which of the following are not posturizing common isolates? तो ये पॉस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट नहीं है बिब्लियोग्राफी और टेबल, लेकिन इंस्टीट्यूशन, लर्न्ड सोसाइटी ये जो है ये पॉस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट है कोलन क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। In the context of dialogue between a user and computer through an interface, TEFCO Sarasevics Stratified Model 1997, when viewed from the human side, represents which strata? Options: content levels, processing, cognitive, affective, situational. And answer is C, D, E only, cognitive, affective and situational. In the context of dialogue between a user and computer through an interface, TEFCO Sarasevics stratified model when viewed from the human side represents which strata? तो ह्यूमन साइड के जो कुछ बातें यहाँ कंसिडर की जाती है इस मॉडल में, साराविक स्ट्रैटिफाइड मॉडल में, तो वो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और सिचुएशनल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आंसर है C, D, E ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A and other is labeled as reason R. Assertion A, e-ग्रंथालय can be customized by the library. पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स ही होगा।
क्योंकि कोहा ये जो सॉफ्टवेयर है वो वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन ई ग्रंथालय ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। रीज़न लाइब्रेरीज ऑप्टिंग फॉर ई ग्रंथालय हैव टू पे NIC फॉर होस्टिंग मेंटेनेंस एट्सेट्रा। तो ई ग्रंथालय अगर आपके ग्रंथालय में यूज़ करना है तो आपको NIC को पैसे भरने होंगे और उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसे देने होंगे। A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। दूसरा जो वाक्य है, रीज़न जो है वह ट्रू है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द फॉलोइंग विद देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कैसी होती है और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसी होती है? जैसे अगर 5 4 3 2 1 ऐसे मैं बोलता हूँ तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। लेकिन 1 2 3 4 जैसे 1990, 1991, 1992, 1993 ऐसे मैं कहूँगा तो ये इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, पुराने से नए तक ये जो है असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो हम यहाँ देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहला जो आता है इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, उसका जो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्वेश्चन पेपर में नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर एडिशन किया है। तो सबसे पुराना जो है 1865 में, 17 में 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन का निर्माण हुआ था। सबसे पहला, सबसे ये बी हो गया। उसके बाद अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट जो कि उसकी स्थापना 1918 में हुई थी, तो इसका नंबर आता है 2। उसके बाद इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स 14 जनवरी 1986 में उसका निर्माण हुआ था, तो ये इसका नंबर आता है 3 नंबर पे। और सबसे लास्ट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, और ये 1 अक्टूबर 1994, 1 अक्टूबर 1994 को ये आया था। तो इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में BACD यह उत्तर है, BACD यह उत्तर है। तो आपके सहूलियत के लिए मैंने उसके ब्रैकेट में जो मैंने उसके ईयर्स दिए हैं ये मैंने अपने आप से दिए हैं, ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बाय देयर ईयर ऑफ क्रिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अगेन असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, बाय देयर ईयर ऑफ क्रिएशन, इसके जो ईयर ऑफ क्रिएशंस है उन्होंने दिए हैं। और ये जो है मॉरिस वॉर्म पहला, दूसरा है क्रीपर वायरस, तीसरा है स्टॉर्म बॉटनेट और चौथा है एनिमल जिसको इन ब्रैकेट ट्रोजन भी कहा है। तो उसका आंसर है BDAC। तो सबसे पहला जो आता है वह बी है, क्रीपर वायरस, जो कि 1971 में ये आया था। उसके बाद डी है ट्रोजन, एनिमल ट्रोजन, ए प्रोग्राम कॉल्ड एनिमल रिलीज्ड इन 1975। ये 1971 में, ये 1975 में, इसकी वजह से इसका नंबर आता है 2। उसके बाद ए जो है वो उसका निर्माण हुआ था 1988, मतलब 1988 में उसका निर्माण हुआ था। तो मॉरिस वॉर्म ये जो है 3 नंबर पे आता है। उसके बाद स्टॉर्म बॉटनेट ये जो है वह 2007 में आया था, इस वजह से उसको 4 नंबर पे रखा गया है। तो इसके जो निर्माण के काल है, क्रिएशन ईयर जो है इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो आंसर हुआ BDAC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट एज असेंडिंग ऑर्डर। अगेन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे पुराने से नए तक हमें जाना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये इसका पहला जो है वह है डी 1993, गोवा
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हुआ था 1993 में। उसके बाद गुजरात 2001 में। उसके बाद राजस्थान, ये जो 3 नंबर पे हुआ था राजस्थान, और छत्तीसगढ़ 2008 में हुआ था। राजस्थान 2006 में और छत्तीसगढ़ 2008 में। तो उसका आंसर है डी, ए, सी और बी, यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट गुटनबर्ग? और ऑप्शन है एडमंड हेरी, जॉन रीड्स, एम गुटनबर्ग और माइकल हार्ट। ये यहाँ कन्फ्यूजन के लिए ये लिखा है प्रोजेक्ट गुटनबर्ग है, लेकिन उसके फाउंडर माइकल हार्ट है। ये याद रखिए, ये गुटनबर्ग का नाम इन्होंने दिया है, लेकिन इसके जो संस्थापक है वो माइकल हार्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम on the basis of materials to be classified rather than on purely theoretical consideration is known as। पूर्णता सैद्धांतिक विचारणों की बजाय वर्गीकरण की जाने वाली सामग्री के आधार पर वर्गीकरण प्रणाली की संरचना को कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिटरेरी वारंट। द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम on the basis of materials to be classified rather than on purely theoretical consideration। मतलब प्योरली theoretical consideration के अलावा जब उस मटेरियल को ध्यान में रखकर क्लासिफाई किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लिटरेरी वारंट कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, semantic web is based on which of the following टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी? सिमेंटिक वेब यह जो टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पर निर्भर है? तो ये जो सिमेंटिक वेब है RDF पे निर्भर है, URT पे निर्भर है और ओंटोलॉजीज पे निर्भर है। रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क RDF, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URT और ओंटोलॉजीज। So answer is A, B and C only. Next question, question number 39. Who among the following called reference service as a personal intercourse between librarians and readers? ये सैमुअल स्वेट ग्रीन, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स। ये रेफरेंस सर्विस को इतना महत्व देते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये रीडर और ये पर्सनल इंटरकोर्स कहते हैं लाइब्रेरियन और रीडर्स के बीच में। तो ये जो कहा है उनका नाम है सैमुअल स्वेट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 40, मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2, और ये है मेंबर चेकिंग, रीवेरिफिकेशन ऑफ collected data and interpretation. Number 2, Likert scale for bipolar is bipolar scale. Thurston equal appearing interval scale, it is attitude rating. And synchronous is a virtual conversation. So answer is A 4, B 3, C 1 and D 2. Next question 41, who authored the book Practice of Management? Who authored the book Practice of Management? Practice of Management नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर ड्रकर है। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज इक्वल टू पीटर ड्रकर, हमेशा याद रखो। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल, A, B, C and E only. A Sierra,
मोजेव, कैटालिना and E. Big Sur. Identify Mac operating system of Apple. A, B, C and E only. Debian is not. Why Debian is not? Because Debian is free and open source operating system. So it is not Mac operating system. Here we can understand. Question number 43. Who devised the role-based model of digital reference? डिजिटल रेफरेंस के भूमिका आधारित मॉडल के प्रतिपादक कौन है? रोल बेस्ड मॉडल ऑफ डिजिटल रेफरेंस बाय एम मैक्लेनन। एम मैक्लेनन इन्होंने रोल बेस्ड मॉडल ऑफ डिजिटल रेफरेंस का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following public libraries acts have the provision of library cess? ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जिनमें लाइब्रेरी सेस की का प्रोविजन है। तो ये है केरला में है और हरियाणा में है। सो आंसर इज 3 नंबर आंसर ए एंड सी ओनली, नॉट ओडिशा, नॉट मणिपुर, बट केरला एंड हरियाणा दे आर having provision of library cess or public libraries act. Question number 45. The International Council on Archives was founded in the year 1948. 1948 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स का निर्माण हुआ था। Question number 46. Which of the following are TQM Total Quality Management Tools? इसमें से दो ही ऐसे हैं जो कि TQM के टूल्स हैं। तो उसमें से पहला है हिस्टोग्राम और दूसरा है पारेटो चार्ट। अब हिस्टोग्राम के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं पारेटो चार्ट के बारे में यहाँ थोड़ा क्लियर करूँगा। ए पारेटो चार्ट इज अ ग्राफ दैट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्ट्स एज वेल एज देयर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। पारेटो चार्ट्स आर यूजफुल टू फाइंड द डिफेक्ट्स टू प्रायोरिटाइज इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द ग्रेटेस्ट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। तो यह भी एक ऐसे स्तंभ है, लेकिन इसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। ये जो स्तंभ है इसमें जो भी प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, 1 नंबर की प्रायोरिटी दी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? परेटो चार्ट या पारेटो चार्ट। तो पारेटो चार्ट में ये जो बड़ी समस्या है उसको हल करने की कोशिश पहले की जाती है, और यह TQM का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक टूल है। क्वेश्चन नंबर 47. द फर्स्ट वायरस रिकॉर्डेड द क्रीपर वायरस वॉज रिटन बाय बॉब थॉमस। क्रीपर वायरस के रूप में दर्ज पहला वायरस किसके द्वारा लिखा गया था? बॉब थॉमस के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 48. अरेंज द स्टेप्स ऑफ द डिजिटल रेफरेंस मॉडल डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्स 1998 एंड वर्चुअल रेफरेंस डेस्क प्रोजेक्ट 1998 इन द करेक्ट सीक्वेंस DABCE। तो क्वेश्चन एक्विजिशन यह 1 नंबर को आता है। उसके बाद ट्रायज 2 नंबर पे। उसके बाद एक्सपर्ट्स आंसर फॉर्मुलेशन 3 नंबर। उसके बाद ट्रैकिंग 4 नंबर, और सबसे लास्ट में आता है रिसोर्स क्रिएशन। ये जो स्टेप्स है डिजिटल रेफरेंस मॉडल जो 1998 या
वर्चुअल रेफरेंस डेस्क प्रोजेक्ट 1998। इसका करेक्ट सीक्वेंस है ये, कौन सा? सबसे पहले आता है डी, क्वेश्चन एक्विजिशन, उसके बाद ट्रायज, उसके बाद एक्सपर्ट आंसर फॉर्मुलेशन, उसके बाद ट्रैकिंग, और उसके बाद सबसे लास्ट में रिसोर्स क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन लिनक्स? विच ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन लिनक्स? लिनक्स पे बेस कौन से सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो है फेडोरा, उबुंटू और डेबियन, यह लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस वजह से उत्तर है ए, सी, डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी चैनल्स of communicating research? Which among the following are examples of primary channels of communicating research? And the answer is A and C, journals and thesis. Which among the following are examples of primary channels of communicating research? ये जो है प्राइमरी चैनल है, जर्नल और थीसिस में जो होता है कंटेंट, वह प्राथमिक स्रोत होते हैं, द्वितीयक स्रोत नहीं होते। क्यों द्वितीयक स्रोत नहीं होती है? क्योंकि जर्नल जो है रिसर्च बेस्ड होते हैं, थीसिस जो है रिसर्च बेस्ड होते हैं। उसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन किया जाता है, उसके अनुरूप या उसके बेस पर वो जर्नल लिखा जाता है, वो थीसिस लिखा जाता है। इस वजह से ए एंड सी ओनली द आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, according to Copyright Amendment Act 2012, in case of photographs, the term of copyright is revised to. According to Copyright Amendment Act 2012, Copyright Amendment Act 2012 के अनुसार in case of photographs the term of copyright is revised, मतलब फोटोग्राफ्स के बारे में जो रिवीजन हुआ, जो संशोधन हुआ, वो ओमिटेड है। उसके बाद उसका आंसर क्या है? ओमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, इन यूनेस्कोज कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL 2013, which one of the following circle represents the information resources and the means by which information is communicated? यूनेस्को की मीडिया सूचना साक्षरता के अवधारणात्मक प्रतिमान 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा सर्कल इस प्रकार निरूपित करता है? वे सूचना संसाधन तथा साधन जिनके द्वारा सूचना का संचार होता है। तो इसका आंसर है सेंटर सर्कल, द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस एंड द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। तो सेंटर सर्कल के द्वारा इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, a device that interconnects two or more networks and selectively interchanges packets of data between them is known as। एक उपकरण जो दो या अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, उनके बीच डाटा पैकेट चयनित रूप से अंतर परिवर्तित करता है, इसे कहते हैं राउटर। राउटर इज अ डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स, दो और दो से ज़्यादा नेटवर्क को एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? राउटर करता है। एंड सिलेक्टिवली इंटरचेंजेस पैकेट्स ऑफ डेटा बिटवीन देम, और सिलेक्शन करके जिसको जो चाहिए वो पैकेट वह भेज देता है, वह काम राउटर का होता है। इस वजह से उत्तर है राउटर। नो गेटवे, नो हब, नो स्विच, बट राउटर इज द आंसर। Question number 54, who was the chief editor of Webster's third new international dictionary of the English language unabridged? और इसके जो चीफ एडिटर है उनका नाम है फिलिप बैबकॉक गोव।
क्वेश्चन नंबर 55, assertion no need to have registration for the copyright works in India. ये सही वाक्य है। भारत में प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अपने आप ही वो कॉपीराइट का हक आपको या अधिकार आपको मिल जाता है, तो सही है, दिस इज ट्रू। रीजन देखेंगे, एज पर द बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ऑब्टेन्ड ऑटोमेटिकली। तो जैसे पहले ही मैंने कहा था कि एज पर बर्न कन्वेंशन के अनुसार कॉपीराइट प्रोटेक्शन आपको अपने आप ही मिल जाता है। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर यूजीसी promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher education institution regulations 2018, which penalties in case of plagiarism in academic and research publication shall be imposed? तो यहाँ जो 2018 में जो रेगुलेशंस प्लेजारिज्म के लिए बनाए गए हैं उसमें से चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उसमें से हमें क्या करना है, दो जो ऑप्शन है वो करेक्ट है वो बताने हैं, ए एंड सी ओनली। विच पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेजरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन शैल बी इम्पोज, तो ये ट्रू है, ये एंड सी। सिमिलरिटी अबाउट 10% to 40% शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर 10 से 40% में आपका अगर प्लेजरिज्म हो रहा है तो आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है विड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरिटी अबाउ 40 to 60 शैल बी डिनाइड और राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट, तो आपका एनुअल इंक्रीमेंट रोका भी जा सकता है और ये जो आपका थीसिस है डिनाई भी किया जा सकता है। तो ये जो है सिमिलरिटी अबाउ 10 to 40% it is also not good, और सिमिलरिटी अबाउ 40% to 60% it is absolutely not good. So this is the provision in regulation 2018 and that is the answer. Question number 57, which of the following are the product and services of OCLC? OCLC के प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन से है? EZ proxy and green glass, A and C only. Question number 58, statement है Yahoo can explore more count of websites while searching a query than Metacrawler. The statement is incorrect. Metacrawler is a meta search engine. The statement 2 is correct. So answer is 4 number answer. Yahoo can explore more count of websites while searching a query than Metacrawler. तो ये wrong है और दूसरा जो statement है वो correct है। Question number 59. In the context of spiral of scientific method, the verification phase is represented below which two cardinal points? और हम सबको पता है कि जो जेनिथ होता है, असेंडिंग होता है, असेंडेंट होता है, उसके बाद जेनिथ सबसे ऊपर, नादिर से हम शुरू करते हैं, नादिर असेंडेंट, ये सबसे पहले नादिर होता है, उसके बाद ये लेफ्ट साइड को असेंडेंट होता है, ये जेनिथ ऊपर होता है और ये डिसेंडेंट होता है। तो उन्होंने क्या कहा है, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक पद्धति के सत्यापन चरण को निम्नलिखित किन दो बिंदुओं के बीच व्यक्त किया जाता है? डिसेंडेंट एंड नादिर, इनके बीच में इस यहाँ जो है, यहाँ निर्देशित, यहाँ जो है ये फेज आता है सत्यापन चरण, उसको वेरिफिकेशन फेज भी हम कह सकते हैं। तो डिसेंडेंट एंड नादिर is the answer. Question number 60, match list 1 with list 2. ये बहुत ही सिंपल है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी
खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ये जो है वह कहाँ स्थित है? बिहार में। सो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी बिहार। रामपुर रजाल लाइब्रेरी ये उत्तर प्रदेश। सरस्वती महल लाइब्रेरी ये तमिलनाडु। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ये दिल्ली में है। तो आई हैव गिवन द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. According to the UGC, Promotion of Academic Integrity, Prevention of Plagiarism in Higher Education Institute Regulation 2018, if any person suspects plagiarism in any document, who should she report? यूजीसी अकादमिक सत्यनिष्ठा संवर्धन व उच्च शिक्षण संस्थानों में साहित्य चोरी की रोकथाम विनिमय 2018 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज में साहित्य चोरी का संदेह है तो वह किससे शिकायत करेगा? वह किससे शिकायत करेगा? DAIP, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, DAIP विभागीय अकादमिक सत्यनिष्ठा पैनल को शिकायत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. सिलेक्ट एक्सपर्ट सिस्टम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. ये चार जो है उसमें से 2 एक्सपर्ट सिस्टम है, 3 है, यहाँ BCD ये भी है, रिएक्टर भी है और माइसिन भी है। तो ये उत्तर है BCD ओनली, ये BCD ओनली ये उत्तर है। तो यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपर्ट सिस्टम, तो प्रोस्पेक्टर, रिएक्टर और माइसिन ये उत्तर है, BCD ओनली। A publisher offers free access to articles for weeks or a month's time under which open access license will be accessibility option follow. एक प्रकाशक लेखों को मुफ्त में पढ़ने के लिए 1 सप्ताह 1 माह का समय देता है। किस ओपन एक्सेस लाइसेंस के अंतर्गत अभिगम्यता का विकल्प आएगा? तो ये ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस में आता है। ये जो है ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस में आता है, उसमें प्रकाशक लेखों को मुफ्त में पढ़ने के लिए 1 सप्ताह या 1 माह का समय देता है। क्वेश्चन नंबर 64. द स्पेशल लाइब्रेरी मस्ट for instance make much more use of what has come to be known as documentation than the general library stated by whom. जिसे प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है, उसकी सामान्य तुलना पुस्तकालय की में स्पेशल लाइब्रेरी द्वारा अधिक उपयोग किए जाना चाहिए। यह किसका कथन है? तो यह कथन है एक्सेल G.S. जोसेफसन, इनका कथन है। बाहर बारिश हो रही है। द स्पेशल लाइब्रेरी मस्ट फॉर इंस्टेंस मेक मच मोर यूज ऑफ व्हाट हैज़ कम टू बी नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। तो स्पेशल लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? एक्सेल G.S. जोसेफसन, इन्होंने कहा है। Question number 65. ADANS, a journal suggester service, is associated with which leading publisher? ADANS एक पत्रिका सुझाव सेवा निम्नलिखित में से किस अग्रणी प्रकाशक से संबंधित है? सेज पब्लिकेशन से संबंधित ADANS है, यह याद रखिए। An invitational metadata workshop organized at Dublin in 1995 and treated as birthplace of contemporary metadata
was sponsored by NCSA or Online Computer Library Center. A and C only. Question number 67. Which among the following options are true about the concept folksonomy? folksonomy के बारे में दो ऑप्शन जो है ट्रू है. इट वॉज कॉइंड बाय थॉमस वांडरवल. थॉमस वांडरवल इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है या विकसित किया है या उस कॉइन का उदय किया है टर्म का. इट वॉज कॉइंड इन 2004. 2004 में उन्होंने इस टर्म को दिया है. तो ए एंड सी ओनली द आंसर. Question number 68. Arrange in sequence the following books authored by S.R. Ranganathan in order of their first publication. तो सबसे पुराना जो पब्लिकेशन है एस आर रंगनाथन इनका वो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934. उसके बाद प्रोलोगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937. ये 2 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है. उसके बाद लाइब्रेरी मैनुअल 3 नंबर पे है और सबसे लास्ट डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1973. तो CDBA इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 69. मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 टाइप्स ऑफ शेयरिंग. लिस्ट 1 टाइप्स ऑफ शेयरिंग एंड लिस्ट 2 फीचर्स. तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक शेयरिंग इसकी जोड़ी आती है मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, ये जो है ऐसे. उसके बाद पैराडिग्मेटिक शेयरिंग, ये है एस्टेब्लिशिंग ए नॉवल डिस्टिंग्विशेबल रिसर्च अप्रोच. डायरेक्टिव शेयरिंग इसकी जोड़ी है शेयरिंग बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. और सोशल शेयरिंग ये आता है रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़. कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़. तो यहाँ मैंने कलर कोड भी किया है तो आसानी होगी आपको समझने में. 70. क्वेश्चन नंबर 70. हु सेड अ नंबर ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द मास मीडिया. यह किसका कथन है? मानव की बुनियादी आवश्यकताओं की संख्या की पहचान जनसंचार के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों से लगाई जा सकती है. यी केट्स, यम गुरेविच एंड एच हास इनका ये कथन है. क्वेश्चन नंबर 71. अंडर द RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 which person cannot submit a complaint to the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be? Who approaches directly to CIC or SIC without approaching CPIO or SPIO as the case may be? तो यहाँ ये जो है हुआ डायरेक्टली आपको CIC और SIC को अप्रोच नहीं करना है बल्कि आपको CPIO या SPIO को कांटेक्ट करना होगा. तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि CIC का मतलब क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. SIC का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. CPIO का सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और SPIO का स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. यह उसके एक्रोनिम है जो कि CIC का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है. और उत्तर भी यह है कि डायरेक्ट आपको CIC या SIC को अप्रोच नहीं कर सकते. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. ए रिसर्चर एक्स पब्लिश्ड 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स. एक रिसर्चर ने 5 मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश किया है. अरेंजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. उलट गिनती के अनुसार उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रखा है. ये कौन सी 21, 15, 13, 3 और 2, 21, 15, 13, 3 एंड 2. व्हाट विल बी द H इंडेक्स? हमें यहाँ H इंडेक्स को निकालना है. तो आंसर इज 3. हाउ इट इज कैलकुलेट? I will tell you that I have given the table rank, citations and publication. So first publication 21 citations, so it is first rank.
second publication 15 citation, second rank. Then publication 3, 13, 3 rank. So if the author researcher has fourth rank, if you will see minutely, the citations are 3. So upper that side you can see, जब 4 रैंक पे साइटेशन 3 ही हुए हैं, उसके ऊपर का जो है रैंक 3 हमें देखना है, वहाँ 3 अगर साइटेशन होते तो भी उसका जो एच इंडेक्स 3 ही आता, 3 या 3 के ऊपर। अगर 4 का जो है साइटेशन 4 होते तो 4 एच इंडेक्स आ जाता था, लेकिन यहाँ 3 या 3 के ऊपर है, इस वजह से 3 एच इंडेक्स 3 आया है। इस प्रकार से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रखना है, उसके अनुसार रैंकिंग बनाना है, और रैंक में जो साइटेशन को देख के आपको जान लेना है कि एच इंडेक्स कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, विच प्रिंसली स्टेट पास्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से किस देशी रियासत ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था? और उसका उत्तर है कोल्हापुर। और शाहू महाराज जो है उनका कार्य इसमें, उनका योगदान बहुत बड़ा है। इस वजह से स्वतंत्रता के भी पूर्व सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला स्टेट कोल्हापुर है, उस समय वो स्टेट था। इंडियन स्टैंडर्ड IS 1553:1989 इज रिलेटेड टू, भारतीय मानक का IS 1553:1989 या 89 किससे संबंधित है? डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स इन देयर करेक्ट सीक्वेंस इन द OSI मॉडल। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हम देखेंगे। पहला जो है वह है फिजिकल लेयर, पहला जो है वह फिजिकल लेयर है। उसके बाद ये बी वाला है, देखिए ये जो है फिजिकल लेयर। उसके बाद डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर ये डी है, देखो। उसके बाद नेटवर्क लेयर, ये 3 नंबर पे आता है, नेटवर्क लेयर। उसके बाद सी है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर पी आता है प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे लास्ट में है ई एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो इस प्रकार से आपको याद रखने होंगे OSI मॉडल के लेयर। सबसे पहला जो है फिजिकल लेयर और सबसे ऊपर आता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा? डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा के एग्जाम्पल कौन से है? फाइंडिंग एड्स ये है, स्पेशलाइज्ड इंडेक्स ये है, और सर क्यूराटोरियल इंफॉर्मेशन ये भी है। ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 77, which of the following are related to UglyNet? Related to UglyNet, A and C only the answer. UglyNet is voluntary network of agriculture libraries around the world. And C, UglyNet centers provide partner libraries with access to the literature originating in the country or the region. Question number 78, identify web programming languages among the following. वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी है? SQL और पाइथन।
उसके बाद डी भी है, ए भी है, रूबी भी है, रूबी, रूबी, एसक्यूएल और पाइथन, यहाँ हम करेंगे टिक मार्क। तो आंसर है CACD ओनली। क्वेश्चन नंबर 79, according to the UNESCO, what is the slogan for the World Book and Copyright Day 2020 observed globally? यूनेस्को के अनुसार विश्व पुस्तक और प्रतिलिपिकार दिवस 2020 जो पूरे विश्व में मनाया गया का नारा क्या है? बुक्स अ विंडो इनटू द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड-19, पुस्तकें कोविड-19 के दौरान विश्व को देखने का झरोका, यह नारा यूनेस्को द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, क्वांटिटेटिव अप्रोच, PERT CPM, साइंटिफिक मैनेजमेंट, गैंट चार्ट, behavioral approach, theory X and Y, and organizational approach, bureaucratic structure. So A3, B1, C4, D2 the answer. Question number 81, which of the following is not a high level class or entity in the BIB frame model? निम्नलिखित में से कौन BIB फ्रेम मॉडल के उच्च स्तर श्रेणी नहीं है? BIB फ्रेम टाइटल यह उच्च स्तर श्रेणी नहीं है, बल्कि उच्च हाई लेवल क्लास में BIB फ्रेम वर्क आ जाता है, BIB फ्रेम इंस्टेंस आ जाता है, BIB फ्रेम आइटम आ जाता है। तो BIB फ्रेम टाइटल यह जो है यह हमारा उत्तर है। नॉट यहाँ लिखा है, देखो नॉट, इसको हमें याद रखना है। मोबाइल ऐप बार्ड इज मेंट फॉर पीपल विथ, यहाँ बार्ड क्या है यही हमें पहले समझना चाहिए, इस वजह से उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया है, ब्रेली एंड ऑडियो रीडिंग डाउनलोड, ये हुआ फुल फॉर्म बार्ड का। अब किसके लिए यूज़ में आता है? विजुअल इम्पेयरमेंट, जो अंध होते हैं उनको ये उपयोग में, उनके लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन, स्पॉट सब्जेक्ट इज अ, रंगनाथन इनके अनुसार स्पॉट सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन। सो फोर्थ इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, एन important academic social networking site ResearchGate was founded by, किसके द्वारा स्थापित हो गई है? इजाद मैडिस्ट, सोरेन हॉफमेयर और हॉस्ट फिकनशर, ABC इनके द्वारा वो स्थापित किया गया है ResearchGate, एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट। उसके बाद द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय केविन एस्टन, इन्होंने दिया है यह टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पहली बार इन्होंने यह टर्म दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, अरेंज द फॉलोइंग रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो इसके जो पब्लिकेशन जो ईयर है उसके अनुसार उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पुराना है डी, स्टेटमेंट्स ईयर बुक 1864, उसके बाद है बी, विटेकर्स आल्मनैक 1868, उसके बाद है ये यूरोपा ईयर बुक 1926, और सबसे लास्ट में है सी, और ये है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 1955। आपके सहूलियत के लिए मैंने उसके फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशंस भी ब्रैकेट में दिए हैं।
तो उत्तर है डी, बी, ए, सी। क्वेश्चन नंबर 87, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ लिस्ट 1 में कॉन्फ्रेंस दिए हैं और लिस्ट 2 में थीम्स दिए हैं। तो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 69th इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस एंड काउंसिल, उसकी थीम थी एक्सेस पॉइंट लाइब्रेरी, मीडिया इंफॉर्मेशन कल्चर। 73rd इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस, वह था लाइब्रेरीज फॉर द फ्यूचर प्रोग्रेस डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप एंड काउंसिल। 78th इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस था, ये इफ्ला के सारे कॉन्फ्रेंसेस है। 78 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ वह है लाइब्रेरीज नाउ इंस्पायरिंग, सरप्राइजिंग एंड काउंसिल, ये है। उसके बाद 82 का जो इफ्ला का जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें थीम था कनेक्शंस, कोलैबोरेशन, कम्युनिटी एंड काउंसिल। तो इस प्रकार से हम उत्तरों को देख सकते हैं, ए को 1, बी को 4, सी को 3, डी को 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, assertion federated search was developed to provide simplified access to electronic content that libraries acquired. Both are correct, but R is not the correct explanation. ये भी correct है। INFED supports access to e-resources in university libraries. तो इनफेड को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को ई एक्सेस करने के लिए इनफेड की सुविधा दी जाती है, ये भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, इतना ध्यान रखना है। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 89, National Center for Children's Literature NCCL is related to राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर NCCL किससे संबंधित है? NBT से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, और ये लिस्ट 1 में दिया है स्क्रीन मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी मैचिंग है क्रोम 20। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और उसकी मैचिंग है माइक्रोसॉफ्ट नरेटर। स्पीच सिंथेसाइजर सॉफ्टवेयर वाचक और ब्रेली ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर मेगाडॉट्स। तो ए को 4, बी को 1, सी को 2 और डी को 3, यह है आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, यह एक पैराग्राफ दिया है, उस पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Philosophy of science consists of epistemological problems as well as other kinds of philosophical problems related to science. Epistemology is an important philosophical subdiscipline concerned with the nature, sources, and limits of knowledge. A crude classification of basic epistemologies is rationalism stresses the role of priori theorizing, empiricism stresses observation, historicism stresses the role of background knowledge, pragmatism stresses the role of analyzing values and goals. Pragmatic view is probably the most relevant to information science. This is living and acting in the world as constituting the priority of human knowledge value, and acting in the knowledge, factual knowledge and procedural knowledge are 3 types of knowledge. Having value knowledge means knowing what fulfills the criteria of good which one is living. Having procedural knowledge means knowing how to carry out a specific act or act sequence. Knowledge can be unarticulated or unarticulated.
Unarticulated knowledge is, for instance, tacit knowledge, familiarity, knowledge by acquaintance. The pragmatic view of knowledge is of special importance to library and information science because it is connected to the societal role of these institutions, whether they are scientific or commercial. Public libraries servicing democracy and enlightenment. So, here we will see the questions based on that passage. Knowledge exercised in the performance of some task is procedural knowledge. Question number 92. Which one of the following knowledge types is difficult to transfer to another person? Articulated knowledge. Question number 93. Which one of the following method state that knowledge comes primarily from the sensory experience? And it is empiricism. Sensory experience, जब हम अनुभव लेते हैं उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है उसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं, और वो सेंसरी, आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो सेंसरी और एक सेंसरी एक्सपीरियंस उसे कहते हैं, उस वजह से एम्पिरिसिज्म इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 94. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी स्टडीज द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज? एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, और ज्ञान शास्त्र भी उसे हम कह सकते हैं. तो ये है उसका उत्तर. क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट को याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के संबंध में विशेष महत्व के ज्ञान हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण नहीं है? इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी और अ मिरर ऑफ नेचर? नॉट अ रीजन बट कनेक्टेड टू द सोसाइटल रोल ऑफ लिस इंस्टीट्यूशन. ये कनेक्टेड है, ये रीजन है, हो सकता है. लिविंग एंड एक्टिंग इन द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग द ए प्रायोरी ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये भी है. पब्लिक लाइब्रेरी सर्विंग डेमोक्रेसी एंड एनलाइटमेंट, ये भी है. इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी और मिरर ऑफ नेचर, ये नहीं है. सारी बातें लाइब्रेरी से नहीं मिलती, या रिप्रेजेंटेशन रियलिटी का नहीं होता है. कुछ बातें ऐसी है कि वो काल्पनिक भी होती है, तो रियलिटी को मेंशन नहीं करती है लाइब्रेरी, इस वजह से ये रीज़न नहीं है प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ नॉलेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है. रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पढ़ेंगे इसको. In higher degree research, it is expected that no significant work is left in the literature review. Undergraduate research would be expected to discuss all of the most prominent research. A literature review is a critical discussion of all the significant available literature that contributes to the understanding of a subject. A literature review is a written document that presents a logically argued case. There are 6 steps in the literature review process: topic selection, literature search, developing an argument, literature survey, critique and write a review. The literature review process requires 4 separate skills, such as the ability to search appropriate sources and scan the literature efficiently, to use manual and online methods to identify and obtain set of useful articles, chapters and books, the ability to judge a source based on a number of criteria, including the source itself, the author, and the subject, the ability to examine and analyze the content of the literature systematically, and the ability to synthesize the various concepts
An evidence a researcher has found into a structured piece of discursive prose that provide context, a background on the research in the area. So we will see the question number 96. Evaluation of source for the process of review does not depend on language. Question number 97. Which among the following skills is required to synthesize concepts that can provide context and background of the search problem? Concept and evidence formulation. Question number 98. The third step of the literature review process stresses on logical argument. Question number 99. At which stage review of literature is usually representative of the most prominent research? Undergraduate level. ये जो लेवल होता है यूजी का अंडर ग्रेजुएट लेवल में रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज यूजुअली रिप्रेजेंट मोस्ट प्रोमिनेंट रिसर्च. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही उनको पता चलता है कि रिसर्च के फंडामेंटल्स क्या है, रिसर्च में क्या किया जाता है, रिसर्च के किस प्रकार किया जाता है. तो यूजी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं या रिसर्चर होते हैं उनके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक वरदान है, ये प्रोमिनेंट रिसर्च होता है. Question number 100, and this is the last question I should say, and this is the video is very lengthy, but as my point of view, as much as possible I tried my level best to explain many questions or difficult questions in a simple form. Which among the following is not a characteristic of review of literature? Which among the following is not a characteristic of review of literature? Statistical analysis is not a characteristic of review of literature, but arguments based on logic, in-depth knowledge, understanding of the subject, these are the characteristic of review of literature, but statistical analysis is not the characteristic of review of literature. With this, I'm thank you so much. I hope it will be beneficial for you. Thank you.